एक काम करते हैं, चलिए एक एक करके ना स्टेप को हम लिखते हैं। आपको देखिएगा इसमें थोड़ा बहुत ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा आपके लिए। एक एक स्टेप को हम लिखते हैं, सर्किट को आप साइड बाय साइड देखिएगा, हम एक एक स्टेप को लिखते हैं कैसे ये काम कर रहा है इन अ सिंपलर मैकेनिज्म। फर्स्ट देखिए, दिस इज योर सर्किट। फर्स्ट कंडीशन क्या है देखिए, 1 अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आई एम टेलिंग फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ग्रेटर देन 2/3 VCC और threshold voltage can be less than 2/3 VCC, right? So suppose this is my comparator. फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट देखिए, if my threshold voltage, the threshold voltage is plus 2/3 VCC is on the negative terminal, ऐसे आपको लिख देते हैं, right? So first condition is my threshold voltage can be either greater than 2/3 VCC or my threshold voltage can be less than 2/3 VCC. So what happened? If my threshold voltage, which is the positive voltage, is greater than the negative voltage, my output will be high. So it will become 1. If positive voltage is less than the 2/3 VCC, means the positive voltage is less, it will provide a low voltage, means 0. So at the comparator output, either you will get high as in 1 or you will get low as in 0. This is first condition. Second चले आते हैं हम second comparator for the first comparator. Now come to the second comparator. Is 2/3 VCC. It can be either greater than the trigger voltage or 2/3 VCC can be less than trigger voltage. This 2/3 VCC is given the input to the positive terminal and the trigger one given to the negative terminal. See, now what happens? If this is my second comparator, suppose this is my second one. So from the output of the second comparator, what can we get? If my positive voltage is greater than the negative one, it will give high voltage, means 1. And it is this is less than the negative voltage, so it will provide low voltage as in 0. Right? So my comparator output will depend upon the input, these two voltages, and this for the second, for these two voltages. So either it will become 0 or 1, right? So now this 0 and 1 can be a 4 combination. Number 3 comes. मैम फर्स्ट पार्ट ये कंपैरेटर ही है उस सर्किट का ना? देखिए फर्स्ट पार्ट है, दिस इज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, दिस इज योर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट विच इज प्रोवाइडिंग दिस। देखिए यहाँ पे नोड है VCC
नेक्स्ट जब यहाँ पे आ रहा है दिस नोट पे, इट्स बिकमिंग 2/3 VCC बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन देखिए, 2R into VCC by 2R plus R. दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर प्रिंसिपल. इसका डिटेल हम नहीं कर रहे हैं, बस अब इतना याद रखिए, VCC जब यहाँ पे आ रहा है, इट इज बिकमिंग 2/3 VCC. अगेन व्हेन इट्स कमिंग आफ्टर पासिंग थ्रू द सेकेंड रजिस्टर, इट्स बिकमिंग 1/3 VCC. मींस धीरे धीरे कम होता जा रहा है वोल्टेज, राइट? So what happens? First is your voltage divider circuit, second is your comparator circuit, right? The voltage divider circuit is providing the input to the comparator circuit basically, right? So after the comparator there is a flip-flop circuit. So see, my comparator output can be in the combination of 0 1. So this 0 1 combination कैसे हो सकता है? चार तरीके से हो सकता है, either 0 0 or 0 1 or 1 0 or 1 1. चार तरीके से हो सकता है. So depending upon the combination to the input of the SR flip-flop, it can either make the flip-flop set, means the output, this output will can be either 1 or reset, means 0. Depending upon the combination of the SR flip-flop input, it can be either set to 1 or it can be either reset to 0, right? अब देखिए थर्ड वन, सॉरी द फोर्थ वन, द डिस्चार्जिंग वन. डिस्चार्ज में हम क्या बता रहे थे? बेसिकली ना यहाँ पे एक कैपेसिटर रहता है. Here a capacitor is also provided here, and this capacitor is connected. यहाँ से एक्चुअली यहाँ से आउटपुट से एक कनेक्शन रहता है. इसको हम ड्रॉ नहीं किए थे, बट बेसिकली देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दिस कैपेसिटर टू द आउटपुट. तो आपको समझाने में मुझे आसानी होगी. अभी एक चीज हम क्या बताते, कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस, राइट? अ कैपेसिटर होल्ड्स द चार्ज, मींस इट स्टोर्ड a certain amount of voltage to in it. So what happens? अब अगर डिस्चार्ज सर्किट पे चले जाते हो, डिस्चार्जिंग में देखिए हम यहाँ पे क्या बताए थे, दिस इज अ representation of a transistor. This is its base, this is the collector, this is the emitter, right? This is a transistor where a capacitor is also attached to it. This is the base of a transistor. So अभी देखिए ये जो ट्रांजिस्टर का बेस है, this is connected to the flip flop output. फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या हो सकता है? The output of flip-flop 0 or 1 can be either 1 or it can be either 0. So when it's getting a input as in 1 to the base of the transistor, what happens? Transistor is nothing but acts nothing but a switch in a circuit. जैसे घर पे इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विच होता है, उसको हम ऑन ऑफ करते हैं, ट्रांजिस्टर भी वैसा ही काम करता है. जब भी उसके बेस में 1 मिलेगा, so the transistor will act as a on condition, means switch on हो जाएगा. Switch on means हम सर्किट को क्लोज कर रहे हैं. सर्किट को क्लोज करने से क्या हो जाएगा? द कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग टू द ग्राउंड. क्योंकि इसको ये जीरो पोटेंशियल से कनेक्टेड हो गया, तो कैपेसिटर विल डिस्चार्ज इटसेल्फ. ये अपने आप का जो चार्ज है वो डिस्चार्ज कर जाएगा. कैपेसिटर, इफ द कैपेसिटर इज बिकमिंग जीरो पोटेंशियल नाउ, सो my output is connected to the capacitor. So what will happen? My final output of 555 timer will become 0. Means when the flip-flop is in set condition, the final output of the timer will become 0. If it's getting 0 to the base of the transistor, it will become an open switch. See, the switch is open, so it's not connected to ground. So the capacitor is not getting a path to ground. So क्या हो जाएगा? इसका जो charge stored है, means it is of high value. Obviously, this is of low value क्योंकि ground के साथ connected है. This is of high value, so my final output of the timer will become 1.
right? So now, depending upon this 0 and 1 condition, the waveform will be like this. Either 0, 1, 0, 1, 0, 1. So this is the final output of a 555 timer. अभी थोड़ा बहुत आसानी हुआ समझने में? मैम क्लियर तो है, बट प्रॉब्लम मैम बस एक जगह है कि जैसे जब फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट रिलीज हो रहा है यहाँ पर, तो फिर मैम अगर ये हमारा यहाँ काम कर रहा है डिस्चार्ज का, तो फिर मैम इसे आउटपुट से फ्लिप फ्लॉप को क्यों डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है? मतलब आप बोल रहे हो कि आउट देखिए, यस मैम, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है output वहाँ पे क्यों है? यस मैम। अच्छा यहाँ पे ना ये एक्चुअली मैंने गलत कर दिया था, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है एक्चुअली, सॉरी। ओके मैम, बस वही उसीलिए कंफ्यूज हो रहा था कि अगर ओके कनेक्टेड है तो हाँ फिर हाँ क्या हाँ हाँ राइट मतलब डिस्चार्ज का कोई मतलब नहीं होता है। राइट सॉरी यहाँ पे मैंने ड्राइंग में गलती की थी. Okay, so the flip-flop output is going to the discharge, and from this part, the output is coming to the final output of the 555 timer. क्लियर मैम। Okay, so this is the formation of 555 timer. और एक चीज आप याद रखिएगा, this is also called a monostable multivibrator. There are two types of multivibrator, astable and monostable. This ये जो 555 टाइमर का जो आप डायग्राम आपको हम समझाए हैं, दिस फंक्शन इज और इस कंडीशन को आप बोल सकते हो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कंडीशन. बाइस्टेबल क्या है बताएंगे आपको, मोनोस्टेबल बाइस्टेबल का डिटेल है, बट दिस कंडीशन व्हिच आई हैव टॉट यू नाउ, दिस इज द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कंडीशन ऑफ अ 555 टाइमर, राइट? सो दिस 555 टाइमर जैसे देखिए इसका एप्लीकेशन यहाँ पे है, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी जनरेटर सर्किट. फ्रीक्वेंसी जनरेटर मीन्स इसका डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर एंड दिस कैपेसिटर, ये जो रेजिस्टर्स है और ये जो कैपेसिटर है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर एंड दिस कैपेसिटर, वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन ये जो एक सिग्नल आपको मिल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा. क्योंकि सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस आप डिटरमाइन कर सकते हो कैसे, वी नो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/time, if proportional to 1/t. So whenever you will get a determine the timing of this resistor and this capacitor, I will come detail of this in later part, but itna sab yaad rakhiye, depending upon the resistor value and the capacitor value, we can also change the frequency of a signal. ये जो signal हम output में मिल रहा है हम लोगों को square waveform, इसका एक particular frequency रहेगा. This frequency can be determined or can be altered depending upon the value of the resistor and the capacitor used in this timer IC, राइट? और एक्सटर्नली भी हम लोग रेजिस्टर और कैपेसिटर कभी कभी लगाते हैं जब हमको बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत होती है. सो दिस इज बेसिकली योर 555 टाइमर. नेक्स्ट, हाँ बोलो मैम. फ्लिप फ्लॉप में जो क्यू बार से आप आउटपुट निकाले हैं, तो क्यू से क्यों नहीं निकला है? क्यू का यहाँ पे क्या काम है? क्यू का काम है, क्यू और क्यू बार का एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप का एक मॉड्यूल है आपका, उसमें आपको बताएंगे. अभी बस इतना याद रखिए, वी आर टेकिंग ओनली द क्यू बार. क्यू एंड क्यू बार, देयर इज टू कंडीशन, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट एंड दिस इज कॉल्ड द पास्ट. Actually, there in flip flop there are two output. One is present in output and one is past output. Means this works as in the function of combinational circuit. There are two types of circuit in a digital circuit. One is sequential circuit and one is combinational circuit. Flip flop comes under combinational circuit. Combinational circuit में क्या काम होता है? Flip flop basically it takes the output for the present input also and for the past input also. Means it's a memory device. इसका डिटेल हम बताएंगे आपको, क्योंकि अभी आपका डिटेलिंग हम बताएंगे ना, बीच में से हम स्टार्ट करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आ जाएगा. नेक्स्ट ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है, इसके बाद हम थर्ड मॉड्यूल ही शुरू करेंगे, उसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. क्यू से हम नहीं ले रहे, सिर्फ क्यू बार से ले रहे हैं. ओके,
If any other doubt you have regarding this 555 timer, you can ask me. मतलब जो हम समझाए आज के क्लास में वो समझने में आपको अगर कोई दिक्कत है वो आप मुझे बताइए. Next I will move on to relay. मैम वो थोड़ा शुरू में इंट्रोडक्शन जो था वो नहीं समझ पाया. कौन सा? स्टार्टिंग में जो बताया नहीं थे वो इंट्रोडक्शन वगैरह वो नहीं समझ पाया. इंट्रोडक्शन हाँ. कौन सा बताइए? 555 टाइमर का. ये देखिए 555 टाइमर में क्या बोल रहे हैं? दिस इज अ ट्रिपल टाइप, इट्स अ आईसी, मींस अ इंटीग्रेटेड चिप और इंटीग्रेटेड सर्किट, कुछ भी आप बोल सकते हो, यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ टाइमर, डिले, पल्स जनरेशन एंड एन ऑसिलेटिंग एप्लीकेशन. मींस हम बताए थे सिर्फ 555 टाइमर कहाँ पे इस्तेमाल होता है. टाइमर कैसे हम बताए थे? टाइमर मींस इट प्रोवाइड अ पर्टिकुलर टाइमिंग टू अ सर्किट, मींस इट हेल्प्स द माइक्रोकंट्रोलर और अ प्रोसेसर टू डिटरमाइन और टू शेड्यूल इट्स वर्क और इट्स वर्किंग फंक्शंस. जैसे मानिए आपको एक टाइमर, एक माइक्रोकंट्रोलर है आपके बोर्ड में, पीसीबी बोर्ड में या कंप्यूटर में. ये माइक्रो कंट्रोलर, जैसे हम लोग बहुत तरीके से काम एक साथ करते हैं कंप्यूटर में, एक वर्ड फाइल खोल दिए, एक डाउनलोड पे बिठा दिए, एक ये काम कर रहे, दूसरा काम कर रहे. माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर ये समझ कैसे पाता है कि मुझे कौन सा काम कब करना है? डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइमिंग, मींस उसको कंट्रोलर को एक टाइमिंग कैसे दिया जाता है? ये जो हम वेव फॉर्म जनरेट कर रहे हैं ना, दिस प्रोवाइड द टाइमिंग टू अ कंट्रोलर. मींस सपोज एक एक जो ऑसिलेशन का जो एक टाइम पीरियड है, सपोज दिस टोटल इज माय 1 सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड, मींस एक एक पल्स जो है ना मेरा 1 सेकेंड का है. सो बेसिकली दिस इज प्रोवाइडिंग अ क्लॉक ऑफ 1 सेकेंड. मींस एक घड़ी जो होता है, घड़ी का जो सेकेंड का सुई होता है वो एक एक सेकेंड करके ऐसा ऐसा टिक 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 करके मूव होता है. वैसे कंट्रोलर में तो घड़ी कौन सा है? कंट्रोलर कैसे समझ पाएगा मुझे कौन सा टाइम पे कौन सा काम करना है? वो काम वो घड़ी का काम करता है ये वेवफॉर्म, क्योंकि ये एक एक इसका जो टाइम पीरियड है, एक फुल साइकिल का टाइम पीरियड है, इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन इट्स कैपेसिटर एंड द रेजिस्टर, वी आर डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंगल सिग्नल. फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना माने क्या? उसके टाइम पीरियड को चेंज करना. सो हम ऐसे इस वेवफॉर्म को जनरेट करते हैं, ऐसे सिग्नल को डिजाइन करते हैं ताकि वो मुझे एक हर एक टाइम पीरियड में एक एक पर्टिकुलर स्लॉट ऑफ टाइम मुझे प्रोवाइड करे. मींस ये दे रहे 1 सेकेंड, ये दे रहे 1 सेकेंड, ये एक 1 सेकेंड का वेवफॉर्म है. सो हम बोल दिए माइक्रो कंट्रोलर को कि मुझे 1 से 2 सेकेंड तक ये पर्टिकुलर टास्क उनको करना है. सो व्हेन इट विल गेट द फर्स्ट पल्स, it will do the task which has been assigned to it. For the second pulse, it will check, oh, it's second pulse, so I'm continuing my previous work only. So now, second, if I assign the microcontroller from 3rd second to 5th second, you will do this particular task. So when it will get its third pulse में आ जाएगा तो ये क्या चेक करेगा कि मुझे 3rd second में या 3rd pulse में ये दूसरा काम असाइन किया गया था. So it will stop its previous work and start the next task which has been assigned to it. So ऐसे ही ये एक सर्किट में टाइम प्रोवाइड करता है to provide the microcontroller or the microprocessor to schedule its work which has been assigned to it. टाइमर ऐसे ही काम करता है सर्किट में. इसका कुछ भी डाउट है तो पूछो. मैम इसका नोट्स मिल जाएगा ना? नोट्स मिल जाएगा. You will get the notes. Don't worry. Next is your, okay, I will send it in PDF form. So next come your relay. So ये relay करवा के आज का क्लास हम खत्म करेंगे. LDR नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे आपको. The relay, what is a relay? A relay is an electromagnetic switch. It is used application to turn on and off a circuit by a low power signal or where several circuits must be controlled by one signal. Means relay means ये वैसे एक सर्किट में स्विच होता है. हम डायरेक्टली चले जाते हैं इसके सर्किट पे. तो सर्किट से हम आपको समझाते हैं इसका डेफिनेशन. See, here I have drawn the schematic diagram. And here I have drawn the circuit diagram.
दोनों का हम थोड़ा साइड बाय साइड देखें, एक मिनट रुकिए। देखिए अभी दोनों को हम साइड बाय साइड रख रहे हैं। फर्स्ट देखिए, दिस इज योर स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द रिले एंड दिस इज योर सर्किट डायग्राम ऑफ द रिले। एक चीज देखिए, जैसे हम बोले थे आपको सोलिनॉइड समझाए थे, इंडक्टर, उसमें क्या करते थे, एक वायर ऐसे लेते थे, उसके ऊपर ऐसे वाइंडिंग करते थे। सो व्हेन आई गिव अ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल जनरेट सम मैग्नेटिक फील्ड। एक बैटरी से हम इसको कनेक्ट करते थे, इट विल गेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट इज पास थ्रू ऑन इट, सो इट विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ दिस। यहाँ पे देखिए सेम प्रॉपर्टी पे काम करता है। व्हाट आई हैव टोल्ड, अ रिले इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म। कैसे? ये जो रिले का सर्किट है, यहाँ पे दो सर्किट यूज होता है साइमल्टेनियसली। वन इज योर कंट्रोल सर्किट, यहाँ पे अगर बोलोगे तो दिस पार्ट इज योर कंट्रोल सर्किट एंड द रेस्ट पार्ट इज योर load circuit. Means this part is your control circuit and this is your load circuit. Load circuit आप जानते हो किसको बोलते हैं? लोड। लोड means the part which is connected to the main circuit. Means control means suppose I'm controlling the switch, I'm controlling a particular mechanism, that is your control circuit, and the load circuit is the output of the control circuit depends on the load circuit. Means load circuit is the main circuit or the mother circuit of a device. Means जिसके ऊपर ही पूरा circuit, means the working पूरा फंक्शन जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन द लोड सर्किट। कंट्रोल सर्किट क्या कर रहा है, बस जो लोडिंग है मींस उसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर रहा है। मींस सपोज एक फैन चल रहा है, आप फैन को कैसे कंट्रोल कर रहे हो? स्विच ऑन और ऑफ करके। सो द स्विच इज योर कंट्रोल डिवाइस हियर, मींस द कंट्रोल सर्किट ओवर हियर, एंड द लोड मींस द फैन व्हिच इज रोटेटिंग, द मोटर्स, फैन का जो मोटर होता है उसका रोटेटिंग डिवाइस होता है, सब कुछ आता है उसका लोड सर्किट के अंदर। मींस द मेन वर्किंग प्रिंसिपल और द मेन वर्किंग मैकेनिज्म इज माय लोड, कम्स अंडर द लोड सर्किट। सो हियर व्हाट हैपेंस, देखिए कंट्रोल एक होता है कंट्रोल यूनिट, मींस द कंट्रोल सर्किट, एंड दिस इज योर लोड सर्किट, राइट? नाउ सी व्हाट हैपेंस। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट देखिए ये जो बैटरी है इसको हम ऑन करेंगे, मींस इस स्विच को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इस स्विच को यहाँ से कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ होने से ये जो इसका जो वेयर है, वी आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हम दे रहे तो मींस इट विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। Means when the control circuit is turned on or switched on, it will start producing magnetic field, right? ये magnetic field produce करेगा, so what will happen? See this is a movable armature. Movable armature में क्या हो जाएगा? This will pull the armature towards it. ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल पुल दिस थिंग और अट्रैक्ट द मूवेबल आर्मेचर टुवर्ड्स इट, ये इसके तरफ ये खींचेगा। सो व्हेन दिस आर्मेचर इज पुल्ड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो स्विच है दिस विल कनेक्टेड ओवर हियर। मींस स्विच अगर कनेक्टेड हो रहा है, सो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग। Here a 220 volt AC is given, means the normal power supply has been given, and this is the load part, this part is connected to load. So ये जो है सर्किट को ऑन कर रहा है, means this switch is also connected to this part as it is providing you a short path, means एक closed path provide कर रहा है, closed path provide करेगा, so this 220 volt AC will pass through the load circuit. And next when this is off, ये connected नहीं है इससे, so there will be no magnetic field
कनेक्टिंग नहीं है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस सर्किट, सो नो जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सो इट विल रिपल्स, मींस इट विल रिपेल दिस मूवेबल आर्मेचर फ्रॉम अवे फ्रॉम इट, इसे दूर ये भेज देगा, सो दिस इज नॉट नो मोर कनेक्टेड, ये इससे डिटैच्ड हो जा रहा है, सो 220 वोल्ट AC इज नॉट कंडक्टिंग टू दिस पार्ट। अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे आप आ जाते हो तो देखो यहाँ पे क्या है, देयर आर टू सर्किट्स, वन इज योर कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज योर लोड सर्किट। व्हेन द कंट्रोल स्विच इज टर्न्ड ऑन, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू अ coil. Control switch is turned on, current will start flowing through the coil, and thus it generates magnetic field that attracts the armature, and the load circuit is closed. ये आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा और जो लोड सर्किट है that will be form a closed path. Next, when नहीं समझ पाया कौन सा चीज, ये सर्किट कैसे वर्क करेगा भी जो बता रहे थे, नहीं समझ पाया। देखिए ये जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली हेल्पिंग टू फॉर्म दिस सर्किट टू क्लोज और टू ओपन। मीन्स जैसे मानिए एक वायर है, मानिए एक रस्सी है, एक रस्सी को हम ऐसे रखे हैं, मानिए एक रस्सी है और ये रस्सी कनेक्टेड है इस डंडे से, ये एक रस्सी, यहाँ पे रस्सी को देते हैं, एक मिनट रुकिए, एक रस्सी यहाँ पे एक डंडे से एक रस्सी को हम ऐसे लगा के रखे हैं। अब देखिए रस्सी को हम जब इस तरफ खींचेंगे, व्हाट विल हैपन, ये जो है डंडा ये ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा। अगर रस्सी को हम ऊपर तरफ पुश करेंगे, सो ये पाथ मेरा ऊपर चला जाएगा, सो व्हेन आई विल पुल इट टुवर्ड्स डाउन, ये जो है दिस विल बिकम लाइक दिस, और इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। एग्जैक्टली, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे टू अट्रैक्ट दिस, टू कनेक्ट फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, और ये जो है सर्किट का मेरा मेन स्विच है। समझ रहे बात को, सिर्फ इस स्विच को, मेन लोड सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं। फाइन, सो what relay does, and suppose when my control circuit is turned off, there will be no magnetic field, so hence the movable armature will, यही वाला मैकेनिज्म को रिले बोलते हैं मैम, जो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके उसको ऑन करता है या ऑफ कर देता है तो। exactly, इसलिए this is called the electromagnetic switch, right? So here is my the other जो मेरा लोड सर्किट है that has been connected to here, और जो मेरा मेन सर्किट को वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन, या फिर दिस कंट्रोल सर्किट इज हेल्पिंग दिस मेन लोड सर्किट टू टर्निंग ऑन एंड टू टर्न ऑफ। और जो इसका ओपन और क्लोज का मैकेनिज्म है, ये कहा, इसको क्या कहते हैं, इसका एक टर्मिनोलॉजी है, दिस इज नॉर्मली ओपन, relay contact is open when the relay is not energized, means अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बाहर से नहीं है उस टाइम पे अगर ये ओपन रहता है, ऐसा ओपन रहता है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मली ओपन, मीन्स उसको हम शॉर्टली एब्रिविएट NO से भी करते हो, एंड व्हेन इट इज क्लोज्ड दैट इज कॉल्ड NC, that is also called normally closed. This switch can be either normally open or normally closed before the control voltage is given to it, means the control circuit अगर हम इस पे इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसका इनिशियल जो कंडीशन है that can be either on or that can be either off. When it is on, that is called normally closed connection, and when it is off, it is called normally open connection. Open रहेगा तो off रहेगा, closed रहेगा तो on रहेगा, right? इसका एप्लीकेशन सबसे अच्छा आपको दिखने को मिलेगा PLC सर्किट में। जो PLC आप नाम सुने हो, PLC प्रोग्राम लैडर सर्किट, PLC डिवाइस, PLC सर्किट इंस्ट्रूमेंटेशन में, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं। मैम आपके पास है तो डेमो दिखाइए इनको PLC का कुछ।
पीएलसी का डेमो बाबू ऐसा नहीं डेमो होता। मतलब नहीं, जो आपके पास है ना इंस्ट्रूमेंट सब, उसमें से नहीं है कुछ? नहीं बाबू, पीएलसी एक होता है ना, पीएलसी एक्चुअली एक मतलब पीएलसी सिस्टम एक बड़ा वाला सिस्टम है अपने कॉलेज में, उसका एक अलग रूम होता है, उसमें कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर में पीएलसी का प्रोग्राम हम लोग डिजाइन करते हैं। मींस दैट यूजिंग दिस स्विच वी डिजाइन अ लैडर डायग्राम, मींस हम पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं। समझ रहे हो? पीएलसी प्रोग्रामिंग में हम लोग एक आपको एग्जांपल बता रहे, जैसे इंडस्ट्रीज होते हैं ना, वहां पे बड़ा बड़ा इक्विपमेंट्स होता है, मतलब वैसे मानिए एक बेल्ट होता है, मतलब कुछ जो डिवाइस बनाते हैं ना, उसमें बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना इंडस्ट्री में। तो उसमें क्या होता है, वो बड़ा बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है, वो सबको चलाने में क्या काम करता है मालूम है? पीएलसी प्रोग्रामिंग काम करता है। वहां पे हम लोग रिले स्विच लगाते हैं, बहुत सारा प्रोग्रामिंग करके रिले स्विच लगाते हैं। कैसे, कौन सा स्विच को कभी ऑन करके कब ऑफ करके, कौन से बेल्ट को चलाना है इंडस्ट्री में, कौन से डिवाइस को या फिर कौन से मशीन को मुझे ऑन करना है, ऑफ करना है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दिस रिले स्विच मैकेनिज्म। हाँ मैम, पीएलसी का एक बड़ा वाला रूम सिविल में सर्वर। गए थे ना, पैचिंग प्लांट था, उसमें कंक्रीट बनाने वाला था, तो मैं बटन से ही कंट्रोल एक्चुअली पीएलसी देखिए, कई आप ये नाम सुने होंगे ना, सर्वर रूम। यस सर्वर, यस। तो सर्वर रूम बेसिकली यही काम करता है। इंडस्ट्री में जो सर्वर रूम रहता है ना, वहां पे पीएलसी का एक रूम रहता है, जहां से पूरे इंडस्ट्री में जितना सारा मशीन है, वो कौन से टाइम पे कैसे काम करेगा, कौन सा स्विच ऑन करने से कौन सा कन्वेयर बेल्ट ऑन होगा, सब कुछ डिपेंड करता है इस रिले स्विच के मैकेनिज्म पे ऊपर। इसका आपको हम मेरे रूम पे, मतलब ऐसा छोटा वाला आईसी नहीं है, दिस इज अ होल सिस्टम। उसके साथ एक कंप्यूटर अटैच रहता है, लीवर कनेक्टेड रहता है, बहुत कुछ कनेक्टेड रहता है, पूरा सर्वर रूम के तरह। वहां पे रिले स्विच का हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। बस इतना आप याद रखिए, रिले स्विच काम कैसे करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, जो कि आपका जो लोड डिवाइस है, इंडस्ट्री में लोड कौन सा होगा, आपका बड़ा बड़ा जो मशीन है, दैट कम्स अंडर द लोड, राइट। वो जो बड़ा मशीन है उसको हम ऑन ऑफ कैसे करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दिस रिले स्विच प्रोग्रामिंग, दैट इज कम्स अंडर पीएलसी प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम लैडर सर्किट। उस पे लैडर डायग्राम हम डिजाइन करते हैं। जैसे सबसे बड़ा पीएलसी का दूसरा एक एग्जांपल मालूम है क्या? लिफ्ट। तो लिफ्ट आप ऊपर नीचे जाता है, वो भी पीएलसी प्रोग्राम के ऊपर ही काम करता है, वहां पे भी रिले स्विच का ही प्रोग्राम रहता है। आपका फिजिकल एग्जांपल ये और भी है। बाकी आपको समझ में कुछ डाउट है, रिले स्विच कैसे काम करता है, नहीं काम करता है? नो मैम। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अदर आई विल एंड द क्लास ओवर हियर, क्योंकि हम एलडीआर आज में ही शुरू करेंगे। पहले ये समझो थोड़ा बहुत, नेक्स्ट क्लास में हम एलडीआर शुरू करेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो। तो मैं इसका नोट भेज दूंगी, आप देखो एक बार इसको, मैं पीडीएफ फॉर्म में ही भेज दूंगी। नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ भी डाउट होता तो आप पूछ लेना मुझे नेक्स्ट क्लास के शुरू में, ठीक है? ओके मैम। ओके आगे ओके क्लास ओके, थैंक यू मैम। हाँ बोलो। आगे का जो क्लास है एक साथ पीडीएफ पीडीएफ भेज देंगे हम, पीडीएफ भेज देंगे हम, अब टेंशन मत लो। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन। मैम वो टाइमर वाला हाँ, का बोलो। सर्किट को जहाँ पर मैम वो टाइमर वाला सर्किट जहाँ पर सुधारना तो सुधार के भेज दीजिएगा मैम। टाइमर वाला एडिट करना सर्किट, था मैम। हाँ यस मैम, उसमें कुछ ठीक है, एडिट ठीक करना है। था मैम, अपलोड करना कुछ। यस मैम। उसमें एडिट देखिए, ऐसा कुछ एडिट नहीं करना है, बस यहाँ पे जो आउटपुट है इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, अब थोड़ा समझ Yes, लेना ma'am. इसको। एक काम कर सकते हैं, अगर मुझे पास व्हाइटनर मिलता है तो व्हाइटनर से हम इसको इरेज कर देंगे, यस मैम। ठीक है? ओके यस मैम। ओके ओके, मैम। सो अच्छा, स्क्रीनशॉट लिए हो आप अटेंडेंस का? यस मैम। ओके फाइन मैम एक पहला Okay. क्लास को भेज दिया, आपको सेकंड वाला भेज दिया। हाँ, सेकंड वाला भी भेज देना। ओके, थैंक यू Yes, सो ma'am. मच, Yes, थैंक ma'am. यू एवरीवन।